Hello everyone, this is Jayant. So this is the fourth lecture of molecular spectroscopy class. So in the last class we have just covered the basic principle of rotational spectroscopy, and we see a basic selection rule, that is the gross selection rule for a molecules to be a rotational active. So we see that the molecules which possess a permanent dipole moment will be interacting with the microwave radiations and will showing the rotational spectrum. Now we just see a simple case of like diatomic molecules. Suppose we have a oxygen, carbon monoxide and HCl. So these are simply by seeing we can say that these are the rotational active because they contain a permanent dipole moment. But if we have, because ultimately we also study the rotational spectra of polyatomic molecules. So for that we need to classify the molecules, because we not easily or by seeing the molecule structure we cannot say that these are rotational active or inactive. So to classify the molecules, the main perspective is to classify the molecules under the categories of rotational active and inactive. So in this class we just basically focuses on the classification of the molecules, that is the polyatomic molecules, on the basis of different types of rotors, and these different types of rotors is classified depending upon the values of moment of inertia. So moment of inertia is basically imparting a great role in this classification of rotational molecules. Now we just first understand that is why moment of inertia is very important for this rotational spectra, or to classify the molecules of rotational active molecules. So if we just see, the main heading is, that is the classification of rotational molecules. Now these classification is done on the basis of rotors, and these rotors is further classified on the basis of different types of or different values of moment of inertia. Moment of inertia. So why this moment of inertia is basically used or having a more importance in this rotational, or to study the rotational spectra of rotational active molecules? This is because if we just see the explanation that what is actually a moment of inertia is, so just consider two like simple example, like two atoms like AB having a bond with a delta positive charge on A and delta negative charge on B. So हमने दो मॉलिक्यूल कंसीडर करे, दो एटम्स, तो हमें पता है इसका कोई सेंटर ऑफ मास होगा जिस पॉइंट से ये क्या करेगा, रोटेट करेगा. तो जैसे हमने इसमें माइक्रोवेव रेडिएशन डाली तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा. बट उससे पहले क्या होगा, ये इसमें कुछ अट्रैक्शन होगी बिकॉज दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. नाउ इनिशियली क्या होगा, ये किसी अट्रैक्शन से जुड़े होंगे. जब भी हम इसमें एनर्जी देंगे, अब एनर्जी कौन सी होगी, माइक्रोवेव रेडिएशन. जब भी हम इसमें कोई माइक्रोवेव रेडिएशन डालेंगे तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स रोटेट करना शुरू होंगे. अब रोटेट करने के लिए इनको क्या होगा, इनको अपनी अट्रैक्शंस जो होंगी वो ओवरकम करनी पड़ेगी, तभी क्या होगा, ये स्टार्ट रोटेटिंग. सो अगर हम मान लें कि मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन को ओवरकम करके ये रोटेट इस डायरेक्शन में करने लगे, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या डिटरमाइन करता है, इट बेसिकली डिटरमाइनिंग द टेंडेंसी और द रेजिस्टेंस ऑफ रोटेशन. इट इज बेसिकली एक्चुअली अ रेजिस्टेंस टू रोटेटिंग बॉडी. सो इसी अट्रैक्शन को, मतलब ये अट्रैक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है कि ये मोमेंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये रेजिस्ट करती है रोटेशन को, दैट इज एक्चुअली अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो इफ वी जस्ट सिंपली डिफाइन दैट इज व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली अ रेजिस्टेंस to rotating molecule. So since they show a resistance to rotating molecules, so depending upon their mass, if we see the mathematical expression of this moment of inertia, so it basically a summation of mi ri square. It is generally represented as I. So this is the mathematical expression of moment of inertia. So moment of inertia is basically depending upon the mass and the distance. Now what is this mass? This mass is basically the mass of atom which are rotating along the center of axis, the axis which is passing through the center of mass. So this is the mass of, suppose in this case we have mass of A and B is considering here, and the R is basically the distance that is covered by this rotation. So for example, this atom B on rotation will move here
and this A will move here. So this distance from center of mass is just considered here. So basically the moment of inertia is just a summation of this MIR square. So by seeing this mathematical expression, which is concluded that since different atoms have a different center of mass, because they have a different, और we can say that अलग अलग masses होंगे, जिसकी वजह से उनका सेंटर ऑफ मास अलग होगा. तो डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट सेंटर ऑफ मास, उसके अलावा उसकी डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, तो उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हर एक एटम्स का मास डिफरेंट होगा और वो अलग डिस्टेंस कवर करेगा. अब ये डिस्टेंस इस पे डिपेंड करता है, ये R डिपेंड करता है कि इसमें कितना ज्यादा डायपोल होगा, क्योंकि जितना ज्यादा डायपोल होगा उतनी ज्यादा ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जितनी ज्यादा ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उतनी ही मतलब स्ट्रांगली ये इस माइक्रोवेव की इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करेगा, विच विल रिजल्ट इन रोटेशनल ट्रांजिशंस. सो ये इसका बेसिक फंडा होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना क्यों इंपॉर्टेंट है. अगर हम बात करें बाय कन्वेंशन कि जो बुक्स में भी हम बेसिकली यूज करते हैं टू बेसिकली डिफाइंस द रोटर्स, तो अगर हम बात करें बेसिकली हमारे पास तीन एक्सिस होती हैं एक्स वाई जी, तो उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं. सपोज अपने पास तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम ए बी एंड सी, तो हमने बाय कन्वेंशनली कुछ मान लिया. सपोज हमने इस वाली एक्सिस को आई सी का नाम दे दिया, जो ये वाली एक्सिस है इसको आई ए का नाम दे दिया और इसको आई बी का. सो कन्वेंशनली अगर हम बात करें कि कौन से मॉलिक्यूल्स कौन सी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, तो अगर हम बात करें आईसी मॉलिक्यूल्स की, आईसी एक्सिस की, सॉरी आईसी एक्सिस में जो आईसी एक्सिस के अलावा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ना वैल्यू, वो मैक्सिमम कंसीडर की जाती है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अगर हम बात करें आईए, तो इसमें क्या होती है? मिनिमम वैल्यू होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की. ये हम अभी एग्जांपल से डिस्कस करेंगे कि ये मैक्सिमम मिनिमम का क्या मतलब है. ये आइए, ये जस्ट अ कन्वेंशन जो हम बुक्स में यूज करते हैं कि टू क्लासिफाई बेसिकली द रोटर्स, बिकॉज अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन करनी है, और वो क्लासिफिकेशन किन के बेसिस पे होगी? टाइप्स ऑफ रोटर्स के. अब रोटर्स कैसे डिफाइन होंगे या कैसे क्लासिफाई होंगे? वो होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू से. तो हम बेसिकली बाय कन्वेंशंस जो भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू से डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस पे वो हम फाइंड करेंगे. और जो अगर हमारे पास सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू किसी एक्सिस पे मैक्सिमम आ रही है, तो उस मैक्सिमम एक्सिस को हम आईसी बोलेंगे, और जो मिनिमम आ रही है उस मिनिमम एक्सिस को आईए बोलेंगे. और जो इन दोनों में बिटवीन में आएगी, जिसकी हमें बहुत कम जरूरत पड़ेगी जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ द रोटर्स करेंगे, कि जो इन दोनों के बीच में आएगी वो आईबी होगी. तो आईबी, तो आईए क्या होगा? मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एंड जो आईबी होगा वो होगा इन बिटवीन आईए आईसी. अब हम इसका मतलब समझते हैं कि ये मैक्सिमम का क्या मतलब है. तो सपोज ये मैक्सिमम आईसी, हमने मैक्सिमम इसको जो अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस एक्सिस को हमने आईसी का नाम दिया. तो इसका मतलब क्या है? अगर हम ये समझे कि जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब होगा? मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब होगा? जब वो ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स, जब वो एक्सिस होगी जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स क्या हो? रोटेट हो रहे हो, तो ज्यादा मासेस इन्वॉल्व होंगे और ज्यादा डिस्टेंस इन्वॉल्व होंगे थ्रू सेंटर ऑफ मासेस. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें BF3 मॉलिक्यूल्स की, सो BF3 हैज अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर. सो इसमें कोई C3 एक्सिस जा रही होगी यहाँ से, जो उसी एक्सिस के अलाउंग क्या हो रहा होगा? ये तीनों मॉलिक्यूल, तीनों फ्लोरीन एटम्स क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं. तो अगर हम बात करें कि ये जो इसमें से जो अपने पास बोरोन है, इसको पास करते हुए एक C3 एक्सिस जाएगी, तो उसी C3 एक्सिस के अलाउंग अगर हम उसके अलाउंग रोटेशन कराएं मॉलिक्यूल्स की, तो इस फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन, ये तीनों फ्लोरीन क्या करेंगे? रोटेट करेंगे. तो अगर हम इसकी आई की वैल्यू देखेंगे तो ये क्या करेगा? समेशन ऑफ 3 masses ऑफ फ्लोरीन प्लस द डिस्टेंस थ्रू विच इट इज कवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ मासेस, वो भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आई अपने पास होता है समेशन ऑफ MIR. तो इसीलिए जो आईसी का मतलब है कि, और इसको हम कहेंगे आईसी, आईसी का मतलब क्या होता है कि जो एक्सिस ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स को रोटेट करे, जब वो वाली एक्सिस जो ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स के
मासेस को इन्वॉल्व करे रोटेशन में, तो उन्हीं मासेस का सम प्लस डिस्टेंस दैट इज कवर्ड बाय दीज एटम ड्यूरिंग रोटेशन फ्रॉम सेंटर ऑफ मासेस इज कंसीडर्ड एज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऑब्वियसली अगर ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स रोटेट होंगे, इसका यही मतलब है मोटा मोटा कि आईसी वो एक्सिस है जो ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स को रोटेट करवा रही है, तो वो क्या होगा आईसी होगा, क्योंकि उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। सिमिलरली आई ए कौन सा होगा, जिसके अलावा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। अब मिनिमम कब हो सकता है, मिनिमम कब हो सकता है, जब ये दोनों फैक्टर क्या हो, मिनिमम हो। अब ये दोनों फैक्टर में से कोई, जैसे अपन कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक आईए के लिए हम सपोज अपन ये लेते हैं कोई मॉलिक्यूल, जनरल मॉलिक्यूल लेते हैं, सपोज अपने पास कोई ए बी मॉलिक्यूल है। अब ए बी मॉलिक्यूल में अगर हम बात करें आईए को हम बेसिकली वो एक्सिस मानते हैं क्योंकि मिनिमम है, तो इसको हम ये भी एक्सिस कहते हैं, दैट इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब इसको इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर कोई भी एक्सिस इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस से पास करेगी तो वो क्या होगा, अगर अपने पास ये भी कोई एटम है तो इनके न्यूक्लियस से अगर कोई भी एक्सिस पास होगी तो जब भी हम रोटेट करवाएंगे, फॉर एग्जांपल अपने पास ये कोई ए बी मॉलिक्यूल है, तो सपोज ए बी मॉलिक्यूल है, तो अगर यहाँ से कोई अपने पास एक्सिस जाएगी तो इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके न्यूक्लियस में लाई कर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या होगा, जीरो हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। तो इसमें जो भी एक्सिस या जो भी एक्सिस इंटर न्यूक्लियर या दो मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस से पास होती है, उसमें जो आर होता है, कौन सा आर, ये रोटेशन वाला आर, ये क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। नेग्लिजिबल मतलब कि ऑलमोस्ट जीरो होगा। तो इस केस में जो इसकी आई की वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, इस वजह से इसको जो भी एक्सिस इंटर न्यूक्लियर से पास करती है हम उसको आईए कहते हैं, यही इसका मतलब है। या अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि आईए वो एक्सिस है जो लेस नंबर ऑफ एटम्स को इन्वॉल्व कराती है रोटेशन में, या वो एक्सिस जिसके अलोंग लेस नंबर ऑफ एटम्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। सो आईए और आईसी का मतलब यहां तक क्लियर हो गया होगा। सो अब हम बात करते हैं इन्हीं आईसी, आईबी और आईए की वैल्यू से हम टाइप्स ऑफ रोटर्स पढ़ते हैं कि रोटर्स इन्हीं आईस की वैल्यूज पे कैसे क्लासिफाई होते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटर। तो अपने पास बेसिकली 4 रोटर्स होते हैं, 4 टाइप्स के रोटर होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ रोटर्स की, तो अपने पास 4 टाइप्स के रोटर होते हैं। पहला क्या हो गया अपने पास, स्फेरिकल रोटर। जो पहला होता है उसको कहते हैं स्फेरिकल रोटर, ये हम ये डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन वी हैव एसिमेट्रिक रोटर्स, देन वी हैव symmetric rotors, and in the last we have linear rotor. So अपने पास ये 4 टाइप्स के रोटर्स होते हैं जिनके अंडर हमें मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ आईए, आईबी एंड आईसी। सो अगर हम बात करें स्फेरिकल रोटर की, तो स्फेरिकल रोटर में क्या होता है, जो भी 3 मोमेंटम, हमारे पास 3 एक्सिस है, अगर तीनों एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू सेम हो गई तो उस मॉलिक्यूल को हम किस रोटर की कैटेगरी में रखेंगे, स्फेरिकल रोटर। तो उसी को हम कहते हैं स्फेरिकल रोटर। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव, लाइक मेरे कहने का मतलब है कि अगर अपने पास जो आईसी एक्सिस है, मतलब जो एक्सिस जिसके अलावा मैक्सिमम रोटेशन है वो बोली, अगर इस मॉलिक्यूल में ना कोई आईसी हो, ना आईए, ना आईबी हो, मतलब तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या इक्वल हो। हम इसको एग्जांपल से बताता हूँ, आईए इक्वल टू आईबी इक्वल टू आईसी, आईए। तो इस कंडीशन को जो मॉलिक्यूल फॉलो करते हैं उसको कहते हैं स्फेरिकल रोटर। अब इसका एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल अपने पास लाइक CH4 मॉलिक्यूल है। अब CH4 मॉलिक्यूल को अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें एक हाइड्रोजन है एंड कार्बन है, तो हम मान लें कि अगर हम ये वाली एक्सिस लेते हैं तो ये वाली एक्सिस क्या करेगी, इसके अलावा भी सेम हाइड्रोजन और कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं मासेस में। हमें कैसे देखना है, हमें आई देखना है, दैट इज समेशन ऑफ MI/RI²।
तो हमें बेसिकली मास और डिस्टेंस का ही लेना है, उसी से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम डिसाइड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू से। तो अगर हम बात करें ये वाली एक्सिस ले, जो ये वाली कार्बन और हाइड्रोजन से पास होती है, अगर हम इसको लेबल भी कर दें 1 2 3 4, तो जो कार्बन और हाइड्रोजन 1 से एक्सिस पास हो रही है तो उसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन का मास इन्वॉल्व होगा। अगर हम बात करें ये वाली एक्सिस की, तो इस एक्सिस में भी एक हाइड्रोजन और कार्बन का ही मास इन्वॉल्व होगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि अगर हम आई और आई बी या आई सी कुछ भी फाइंड करें, तो अगर हम ये वाली एक्सिस लेंगे तो यही 3 एटम इन्वॉल्व होंगे, यही 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अगर हम ये वाली एक्सिस लेंगे तब भी यही 3 जो नीचे वाले 3 ये रोटेट होंगे। अगर हम H3 और C लेंगे तब भी H2 H1 एंड H4 रोटेट करेंगे। कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक्सिस लें, उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रोटेट करेंगे एट अ पर्टिकुलर एक्सिस विल बी सेम, व्हिच विल रिजल्ट इन सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यूज इन एवरी डायरेक्शन और इन एवरी एक्सिस. So that's why these type of a molecule is classified under a spherical rotor in which all the moment of inertia values will be same. So जो अपने पास CH4 है, this is a type of spherical rotor. तो अब हम बात करते हैं इसकी रोटेशनल एक्टिविटी और इनएक्टिविटी, क्योंकि हमने जो मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन करी थी वो इसीलिए करी थी ताकि हम पता कर पाए कि कौन से मॉलिक्यूल क्या है, रोटेशनल एक्टिव है और इनएक्टिव है. तो बात करें अगर आप CH4 मॉलिक्यूल्स की, तो CH4 मॉलिक्यूल हमें ये पता लग गया कि ये स्फेरिकल रोटर की कैटेगरी में आता है, बट हमें ये कैसे पता लगे कि ये रोटेशनली एक्टिव है या इनएक्टिव है. उसके लिए हमें देखना पड़ेगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे हमने बोला था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस दो चीजों पे डिपेंड करता है, दैट इज द मास एज वेल एज द डिस्टेंस. अब डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस वो हो गया जो क्या है, रोटेशन से ये सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस होता है. मतलब अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, सपोज अपने पास ए बी मॉलिक्यूल है और इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस होता है ये वाला, कि ये यहाँ से रोटेशन के बाद ये कितना डिस्टेंस कवर किया सेंटर ऑफ मास से. सो ये होता है इसका आर. अब ये जो आर होता है ना, ये आर विल डिपेंड्स अपॉन द चार्ज, दैट इज द डायपोल मोमेंट ऑन दिस ए बी मॉलिक्यूल. बिकॉज जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मतलब उतनी ज्यादा क्या होगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. कौन सी एनर्जी को? माइक्रोवेव रेडिएशन को. तो जितनी ज्यादा है उस पर डायपोल मोमेंट, उतनी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा. अब जितनी ज्यादा ये एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा उतनी जल्दी या उतनी ही तेज या उतना ही डिस्टेंस ये रोटेशन करेगा, उतना डिस्टेंस ये रोटेशन में कवर करेगा. तो उसी रोटेशन की वजह से क्या होगा, मोमेंट ऑफ एनर्जी या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू ज्यादा होगा. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर एक्सिस पे, क्योंकि हर एक्सिस पे क्या है, IC इक्वल टू IB इक्वल टू IA सेम है. हर एक्सिस पे जो एटम्स रोटेट कर रहे हैं वो क्या है, सेम है. तो अगर एटम सेम है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, सेम होगा हर एक्सिस पे. तो जिसकी वजह से कैंसल आउट हो जाता है डायपोल मोमेंट एंड रिजल्ट्स इन अ नो डायपोल मोमेंट. सो दैट्स व्हाई these types of molecules, that is the spherical rotor molecules, are generally rotationally inactive. So this is what the basic motive of this classification of the molecules. इसमें और molecules और example, अगर examples की बात करें तो इसमें अगर हम example लिखें spherical rotors में, तो spherical rotors में example होते हैं like जो भी tetrahedral, जो भी molecule tetrahedral geometry के होते हैं, जैसे CH4 का है, tetrahedral का है. So these are called as a spherical rotor. Octahedral geometry के, isohedral geometry के, like example P4, we have CCl4 tetrahedral, SF6 octahedral, we have like CH4. So all these kind of molecules are spherical rotors and rotationally inactive. Now another class of this types of rotor is asymmetric rotors. So अब हम discuss करते हैं what is asymmetric rotors. तो अब हम डिस्कस करते हैं द सेकंड क्लास ऑफ रोटर्स, दैट इज द एसिमेट्रिक रोटर्स. तो एसिमेट्रिक रोटर्स के लिए जो हमारे पास कंडीशन होती है, दैट इज IA इज नॉट इक्वल टू IB इज नॉट इक्वल टू IC. सो तीनों एक्सिस पे जो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज होती है वो डिफरेंट हो, तो उस टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एसिमेट्रिक रोटर्स की कैटेगरी. इसका एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है, लाइक वी हैव वाटर, वी हैव chlorobenzene. So these are the examples of
These are the examples of asymmetric rotors. Now इसको अगर हम डायरेक्टली पता करें, बिकॉज वी नो दैट ये तो डिफिकल्ट होगा ना कि हम हर बार IAIC ढूंढें, तो अगर हम इसकी ट्रिक देखें तो वही मॉलिक्यूल्स जिसमें मैक्सिमम या जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी ना वो C2 प्रेजेंट हो, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम किस में क्लासिफाई करते हैं? एसिमेट्रिक रोटर्स में। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है कि सपोज अपने पास वाटर है, सो वाटर में क्या होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कौन सी प्रेजेंट होगी? C2, और तो कोई इससे हायर ऑर्डर की एक्सिस तो प्रेजेंट नहीं होगी। इसी एक्सिस के अलोंग ये हाइड्रोजन्स रोटेट करेंगे। सो अगर मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में C2 प्रेजेंट है या जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या हो, सिर्फ C2 हो, तो उस मॉलिक्यूल्स को हम एसिमेट्रिक रोटर में कंसीडर करते हैं। दिस इज व्हाट वी कंसीडर अ ट्रिक टू फाइंड दैट द विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी एसिमेट्रिक रोटर्स। तो इसके लिए हम जनरली देखते हैं एसिमेट्रिक रोटर के लिए जो कंडीशन होती है, इफ C2 is present as higher order axis of rotation, तो उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? हम एसिमेट्रिक रोटर्स में क्लासिफाई करते हैं। तो ये तो बात हुई एसिमेट्रिक की। हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी होती है दैट इज द क्लासिफिकेशन of molecules under the category of symmetric rotors। तो symmetric rotors में क्या conditions होती हैं? तो इसके लिए ये थोड़ा important भी है क्योंकि इससे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं लास्ट ईयर्स में। तो अगर हम बात करें symmetric rotors की, तो इसके लिए जो conditions होती हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है, दो वैल्यूज कोई भी दो एक्सिस पे आइदर IAIB इक्वल हो जाए या ICIB इक्वल हो जाए, कोई भी दो एक्सिस पे जो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, और एक एक्सिस पे क्या होगी, नॉन इक्वल होगी। तो उस टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को हम सिमेट्रिक रोटर्स की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसमें जो सिमेट्रिक रोटर्स होते हैं, ये फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। दैट इज एक तो होता है अगर IC, अगर हम मान लें कि सपोज IC एक्सिस है, वो क्या है, इक्वल टू IB है एंड विच इज ग्रेटर देन IE। अब मैंने ग्रेटर देन क्यों लिखा, क्योंकि जो IC है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन होगी ना, क्योंकि बाय कन्वेंशनली हमने बात देखा है कि जो IC होती है उसके अलोंग मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो IC अगर ये वाली कंडीशन हो ना, तो उस टाइप्स के रोटर्स को कहते हैं, सिमेट्रिक रोटर्स को क्या कहते हैं, प्रोलेट, प्रोलेट कहते हैं। और अगर IC इज ग्रेटर देन IA इक्वल टू IB, इस टाइप्स के जो मॉलिक्यूल इस टाइप की कंडीशन को फॉलो करते हैं उसको हम कैटेगरी कहते हैं ऑब्लेट सिमेट्रिक रोटर्स, उसको कहते हैं ऑब्लेट, इसको कहते हैं प्रोलेट। इसका यही मतलब है सिमेट्रिक रोटर का, जैसे मैंने बताया कि कोई भी दो एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इक्वल हो जाए और एक एक्सिस के अलोंग नॉन इक्वल हो, तो उसी टाइप्स के मॉलिक्यूल को हम सिमेट्रिक रोटर कहते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन देयर वैल्यूज, दैट इज कौन से एक्सिस पे वो मैक्सिमम या अलग वैल्यू दे रहा है, उसकी कैटेगरी में हम दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को रखते हैं, दैट इज प्रोलेट एंड ऑब्लेट। प्रोलेट कौन से होते हैं, जिनमें IA क्या हो, मिनिमम हो, IA एक्सिस क्या हो, अलग हो, और ऑब्लेट क्या होता है जिसमें मैक्सिमम एक्सिस क्या हो, अलग हो। अब हम इसके एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो अगर हम बात करें प्रोलेट की एग्जांपल की, तो प्रोलेट में अगर हम इसका एक और ट्रिक होता है, लाइक वी हैव अ प्रोलेट एंड ऑब्लेट। तो अगर हम इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन करनी हो कि कौन सा मॉलिक्यूल क्या हो, प्रोलेट और ऑब्लेट हो, तो इसके लिए हमें दो ही एक्सिस चाहिए, क्योंकि अपने पास क्या हो, या तो IA मिनिमम देखना है या फिर IA मैक्सिमम देखना है। अगर IA मिनिमम मिल गया अपन को किसी मॉलिक्यूल में, तो वो सीधा सीधा प्रोलेट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो हमें सिमेट्रिक रोटर देखना है। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक रोटर होगा तो सिमेट्रिक रोटर के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक कंडीशंस इसमें सिमेट्रिक रोटर के लिए होती हैं कि जिस मॉलिक्यूल में अपने पास CN एक्सिस हो ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है कि जो अपने पास हायर ऑर्डर की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो ना, अगर उसमें जो n की वैल्यू है जो C3 प्रेजेंट हो या C3 से बड़ी एक्सिस प्रेजेंट हो, तो उस टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को हम सिमेट्रिक रोटर कहते हैं। ठीक है, तो उस टाइप्स के मॉलिक्यूल को हम जनरली सिमेट्रिक रोटर कहते हैं। नो, उनमें भी अगर वो सिमेट्रिक रोटर हैं तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, प्रोलेट में आते हैं, ऑब्लेट में आते हैं। तो इसके हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अपने पास कोई भी मॉलिक्यूल, अगर हम सिंपल प्रोलेट का एग्जांपल लें, सिंपल अगर हम सबसे पहले कोई एग्जांपल लेते हैं, लाइक वी हैव CH3I।
तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी लाइक वी हैव आयोडीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें अगर अपने पास एक्सिस देखनी हो जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट हो रहा है, तो इसमें C3 प्रेजेंट है कि जो भी एक्सिस इस कार्बन से कट होकर यहाँ से पास करेगी वो क्या करेगी, इसको रोटेट करेगी, इसको रोटेट करेगी और इसको रोटेट करेगी। तो अपने पास C3 एक्सिस तो भैया इसमें प्रेजेंट है CH3I मॉलिक्यूल में। तो अगर C3 प्रेजेंट है, तो मैंने अभी बताया अगर इसमें C3 प्रेजेंट हो या उससे बड़ी वाली एक्सिस प्रेजेंट हो तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, सिमेट्रिक रोटर की। तो ये सीधा सीधा तो ये पता लग गया कि भाई ये तो सिमेट्रिक रोटर है। पर सिमेट्रिक रोटर में भी ये कौन सी कैटेगरी में आता है, प्रोलेट में आता है या ऑब्लेट में आता है, ये हमें किससे पता लगेगा, बाय फाइंडिंग दैट IC प्रेजेंट है या IA प्रेजेंट है। अब इसमें देखें, इसमें बेसिकली अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास आयोडीन हैवियर एलिमेंट है और कार्बन और तीनों हाइड्रोजन का सब मिला के भी उसके इक्वल नहीं होता। तो अगर हम बात करें इस वाले बॉन्ड के अलोंग, तो सेंटर ऑफ मास अपना कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो जो भी एक्सिस I और C इन इसको मतलब इसके बीच से जाएगी, जो भी एक्सिस C और I के बीच से जाएगी, मैंने जो अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी एक्सिस इंटर न्यूक्लियस से पास होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो IA की वैल्यू होगी मिनिमम होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा, उसको हम IA कहते हैं। यही मतलब है कि अगर सेंटर ऑफ मास इस बॉन्ड के अलाउंग है तो अपने पास जो IA होगा, IA क्या होगा, जो एक्सिस कार्बन और इस वाले आयोडीन से पास हो रही है वो क्या होगा, IA होगा। तो अपन को सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे IA मिल रहा है, क्योंकि हमें IC और IB फाइंड करने की जरूरत नहीं। अगर मॉलिक्यूल में IA है IC, उन दोनों में से कोई भी एक प्रेजेंट है तो हम इजीली बता सकते हैं वो प्रोलेट है या ऑब्लेट है। अब इस केस में हमने सबसे पहले देखा कि हमने CH3 मॉलिक्यूल लिया एग्जांपल के तौर पर, इसमें हमने देखा कि C3 प्रेजेंट है या उससे बड़ी वाली एक्सिस प्रेजेंट है, तो हमने मिल गया, हमें C3 मिल गया, हमें C3 प्रेजेंट मिल गया इसमें। तो C3 मिल गया तो हमने सीधा सीधा कह दिया कि ये तो सिमेट्रिक रोटर है। अगर सिमेट्रिक रोटर है तो इसमें कौन सी कैटेगरी में है, प्रोलेट है या ऑब्लेट है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करें, IA और I। तो IA क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से जो एक्सिस पास कर रही है, तो ये जो C और I से पास करेगी इसी को हम IA कह सकते हैं। तो IA क्या होगा, मिनिमम है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस होगी, ठीक है। तो ये मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस क्या होगी, अगर IA मिल गया हमें तो IA क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें एक डिफरेंट फाइंड करना है, क्योंकि सिमेट्रिक रोटर वही होता है ना कि एक एक्सिस डिफरेंट है। अब IA मिल गया तो IA क्या होगा, डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली IC और IB इक्वल हो जाएगा, तो ये कैटेगरी हो जाएगी प्रोलेट की। तो CH3I इज अ प्रोलेट मॉलिक्यूल, ठीक है, बात समझ आई। अगर हम ऑब्लेट की बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा। अगर हम बात करते हैं दूसरी एग्जांपल की, लाइक अपने पास BF3 मॉलिक्यूल है। अगर हम फिर से BF3 मॉलिक्यूल को देखते हैं, तो सपोज अपने पास B, इसकी ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, कुछ इस तरह से ये मॉलिक्यूल दिखेगा, दिखेगा ऐसे। तो हमें ये पता है कि जो BF3 होता है, इससे जो बोरोन से जो एक्सिस पास होगी, जो बोरन से एक्सिस पास होगी वो कौन सी होगी, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंटेन करेगी कि नहीं करेगी, करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि ये जो एक्सिस है वो ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, क्योंकि तीनों फ्लोरीन को क्या कर रहे हैं, रोटेशन में इन्वॉल्व करती है। रोटेशन में इन्वॉल्व करने का क्या मतलब है, तीनों का मास और डिस्टेंस इन्वॉल्व होगा। तो तीनों का अगर मास और डिस्टेंस इन्वॉल्व हो रहा है तो जो I की वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब मैक्सिमम कौन सी होती है, IC। तो हमें इस मॉलिक्यूल में क्या दिख रहा है, IC प्रेजेंट दिख रही है। तो IC प्रेजेंट है मतलब हमें एक ही देखनी है। सबसे पहले तो हमने C3 देखा, C3 प्रेजेंट है भैया, तो ये सीधा सीधी किसमें चला गया, सिमेट्रिक रोटर में चला गया। अब जैसे अपने पास सिमेट्रिक रोटर है तो सिमेट्रिक रोटर का क्या मतलब, ऑब्लेट है प्रोलेट है, उसके लिए हमने I और IC फाइंड करनी है। तो इस मॉलिक्यूल में सीधा सीधा अपन को IC दिख रहा है, IC दिख रहा है ना। तो IC दिख रहा है तो मतलब क्या हो गया, अपने पास IC अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, ऑब्लेट की कैटेगरी में आ गया। और एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखें, लाइक अपने पास सपोज बेंजीन है C6H6, ठीक है। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगी, ठीक है। इसमें अब हमको ये पता है
कि यहाँ भी हाइड्रोजन होते हैं, इसमें चारों तरफ क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। इसकी ये स्ट्रक्चर हो गई। अब हमें क्या देखना है, CN एक्सिस ग्रेटर देन इक्वल टू 3 प्रेजेंट है इसमें कोई, बिल्कुल है। C6 एक्सिस यहां से जा रही है ना, जो ये वाले एटम, 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 सारे एटम्स की रोटेशन को इन्वॉल्व कर रही है। तो हमें C6 मिल रही है, तो ये सीधा सीधा किस कैटेगरी में है, सिमेट्रिक रोटर्स की कैटेगरी में है। नाउ हमें क्या देखना है, प्रोलेट और ऑब्लेट। प्रोलेट के लिए हमें एलई फाइंड करना है, ऑब्लेट के लिए आईसी फाइंड करना है। इसमें कौन सी दिख रही है हमें, जो इस वाली, जो इस सेंटर से जाएगी वो क्या करेगी, 6 के 6 कार्बनों की रोटेशन को इन्वॉल्व करेगी। तो जो इस सेंटर से एक्सिस जाएगी ना, तो उसी को क्या कहेंगे, क्योंकि वो सारे रोटेशन इन्वॉल्व कर रही है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आईसी। तो आईसी क्या होगा अपने पास, जो अपने पास आईसी हमें यहाँ पे मिल रहा है, विच इज अ मैक्सिमम। तो आईसी मिल रहा है का क्या मतलब है, आईसी अलग हो गया, आईसी अलग हो गया तो ऑब्लेट। सो एग्जांपल इज C6H। सो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं अंडर डिफरेंट रोटर्स। और उसमें भी अगर हम सिमेट्रिक रोटर्स में हम ये भी देखते हैं कि प्रोलेट है या ऑब्लेट है, वो डिपेंडिंग करता है ये ना इसी वैल्यू। इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत बड़ा रोल होता है इन क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सो आज की क्लास में हमने बेसिकली यही कवर किया है कि टाइप्स ऑफ रोटर्स और उनकी क्लासिफिकेशन, मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन अंडर दीज कैटेगरीज। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, सो यू हैव टू सॉल्व इट। तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। लाइक अपने पास एग्जांपल है वाटर, अमोनिया। इसमें बताना है टाइप्स ऑफ रोटर्स। Like we have UF6, like we have CCl4, SiH4, then we have like C6H5Cl, then we have pyrazine, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। So this is what the pyrazine। तो बस इतने ही CCl4 नहीं लिखा था, CCl4। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स का हमने टाइप्स ऑफ रोटर्स बताने, तो इसमें बताने हैं टाइप्स ऑफ रोटर एंड प्रोलेट एंड ऑब्लेट, प्रोलेट एंड ऑब्लेट, CH3Cl। सो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसकी आंसर्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास में हमने बेसिकली क्लासिफिकेशन करी है मॉलिक्यूल्स की। तो हमें बेसिकली अगर हम बात करें, अगर आप भूल भी गए होंगे, तो हमें क्या क्या पढ़ना है इस मॉलिक्यूल्स या इस स्पेक्ट्रोस्कोपी सीरीज में। हमने एक तो डिफरेंट एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग, एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है कि हमें डिफरेंट एनर्जी, दैट इज द रोटेशन एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इनकी ट्रांजिशंस की स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हमने रोटेशन एनर्जी की ट्रांजिशंस स्टडी करना शुरू की है। तो इसमें ट्रांजिशंस में हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें उसकी एनर्जी पढ़नी है। एनर्जी पढ़ने के बाद हमें ये देखना है, हमने अभी तक देखा है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स शो करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अब उसके बाद हमने उनकी एनर्जी देखनी है, एनर्जी के बाद हमें उसका पॉपुलेशन रेशियो देखना है। तो हमें 3 ही फैक्टर देखने होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं 3 फैक्टर की स्टडी करेंगे। तो हमने अभी तक सिलेक्शन रूल और थोड़ा क्लासिफिकेशन करा है मॉलिक्यूल्स का। अब नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी का डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम पॉपुलेशन रेशियो और जो भी रिजिड और नॉन रिजिड का केस है वो भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे क्लास। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।